तो कहीं आपने इसके लिए सीखा नहीं किसी जो आर्टिस्ट के पास? I think the whole credit to inspire me to do more was my mom in this scenario. तो आप कितने प्रकार की पेंटिंग करते हैं? पूरे इंडियन folk styles मैं करती हूँ. How can you beat the market with your paintings? But I think my work speaks for itself now. So people, it's more of word of mouth or the अंदर भी पेंटिंग्स देखी उसमें बहुत सारे आपके जो नॉर्थ का कल्चर ज्यादा आपने यूज किया है. I think tanjore एक ऐसी चीज है जो everybody would like to have. What about the demand of this painting? Very very high in demand. Their culture is also very rich. जैसे ही जयपुर या उदयपुर की बात करेंगे तो the only thing we talk about रजवाड़े की बात ही करेंगे. तो अभी आप किसी को सिखाते भी हो, क्योंकि आपके बाद कौन करेगा ऐसा? जितना कर सकती हूँ करूँगी. जब लगेगा कि नहीं अब ये सिखा लूँ. जब आपने स्टार्ट किया था, when you started, तो कॉन्फिडेंस कैसे आया कि अरे आई एम डूइंग गुड? मतलब किसी को तो दिखाया होगा. थोड़े थोड़े ऑर्डर्स लेने शुरू किए मैंने. एंड देन आई रियलाइज्ड कि यस देयर इज हाई पोटेंशियल वेयर पीपल रियली लाइक इट. Now joining us is Sarita Mathur, a renowned painter. This beautiful artwork you see behind, every single one is painted by her. Welcome to Havis TV, ma'am. Thank you, Havis Shashi. TV में बहुत-बहुत स्वागत है. Yeah. First, how and when you started? Tell me something about your journey. Shashi, I have been painting, I should say, right from my childhood. This has always been my hobby. So what started as an hobby today is, become my profession. तो आप कह सकती हैं कि जब से मैंने होश संभाला है तब से पेंटिंग कर रही हूँ. तो कहीं आपने इसके लिए सीखा नहीं किसी जो आर्टिस्ट के पास? No, this has been a God's gift to me. Okay. And I think the whole credit to inspire me to do more was my mom in this scenario. Because she would see anything, any place, she would come and say कि मैंने ये देखा है बहुत अच्छी है तो आप try करो. And probably it was always the challenge to do something very nice and very creative. Is probably where I am today. Okay, what about your education? I have been graduate in commerce. Okay. Then I did my interior designing. Then went on to do my graphics and web designing. I worked for almost about 10 to 12 years as a web and graphic designer. And yeah, here I am today doing as an artist. Okay, तो आप कितने प्रकार की पेंटिंग करते हैं? I think folk styles में almost about 22. More than 22 of पूरे Indian folk styles मैं करती हूँ. Okay, then you are saying that you didn't get any training for that, and but how you know that इतने टाइप की पेंटिंग्स? Yes. So my journey, ये तो पहले बड़ा मुश्किल था किसी को समझाना कि it goes into the blood. You have to do something new करके हमेशा से रहा है. So I think probably this is what led me to keep exploring. When I realized that my great hobby was only in painting, and when I was supposed to pursue this as my career, which was not the initial thought, but then yes, and finally I अपने पास इतने सारे कल्चर्स ट्रेडिशंस वगैरह हैं इंडिया में, तो यू कांट स्टॉप योरसेल्फ एज एन आर्टिस्ट विथ वन. So होता ये है कि you start to tend to explore a lot, and I had this right from the beginning to explore new. I couldn't be satisfied if I know something. This is my, this is where I give a full stop types. So I have been doing, and बहुत सारा कल्चर के बारे में पढ़ा है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में मैंने जानकारी हासिल की है. So this is where it led to different styles. I realized that every state of us has a very different culture. Yes. And interrelated. At the end of it, today I can say they are very interrelated, but they have a different style. They have a different technique. They have a different style. So मैंने कोशिश की है कि हर स्टाइल को सीखूं, हर वहाँ की स्टोरी जानूं, which led them to create this style. And then probably this is how it led me to realize ये स्टेट से वो स्टेट से another. That's how probably I learned almost about 22 styles today.
Okay, how many states till now you have covered? They should say almost about 22 styles if I'm doing. Okay. Yes, at least 22 of our states के paintings कर ही लेती हूँ. तो अब देख रही हूँ मैं कि बहुत सारे लगभग तो भगवान जी लोगों का ही है, लाइक वो कृष्ण जी हैं यहाँ Correct. पे, ये 7 घोड़े का है, ये वास्तु के हिसाब से है. वास्तु के हिसाब से. Right. तो एक्चुअली हम लोग जनरली वी गेट दैट पीपल लाइक टू डू नेचर पेंटिंग. Correct. बट यू चोजन दिस. I have chosen basically I do all natural sceneries वगैरह भी सब करती हूँ, but I think my soul lies in doing India's soul paintings. Okay. So when every state speaks about one culture, they have one very different technique to do. तो ये टेक्निक अपनी हर टाइप की कहानी बता सकती है. A scenery will just represent. How can you beat the market with your paintings? No, it is not like beating the market, but definitely I tell you, it's a challenge. It's a challenge. आज के digital media में, it definitely is a challenge to do this. But I think my work speaks for itself now. So people, it's more of word of mouth or the media today, and connects that comes from or the recognition which the people give you. This is what keeps me going. And जैसे हर कस्टमर अपनी एक कहानी के साथ आता है, अपनी एक सोच के साथ आता है, तो that's a big challenge when I'm able to fulfill it. तो ऐसे लगता है जब हर पीस मेरे पास से जा रहा है तो एक कहानी अपने साथ ले जा रहा है. That gives me the immense satisfaction. So I think that is what keeps me going. फिर आप एग्जीबिशंस में कैसे, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे? ना, मैंने इतने एग्जीबिशंस करने का मौका मुझे नहीं मिला है, बट स्टेट में डेफिनेटली आई हैव डन लॉट्स ऑफ एग्जीबिशंस और इन हैदराबाद हैदराबाद. ओके. तो इसके बाद में इट इज लाइक अब नाउ आई हैव नो टाइम आई शुड से कि इतने सारे पेंटिंग्स जमा कर पाऊँ एक एग्जीबिशन के लिए. बट राइट नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज जो भी ऑर्डर्स मिलते हैं, so I work on those orders. And how you sell your product? It's word of connects. जैसे आप जानती हो मुझे, आपको कोई पेंटिंग चाहिए तो आप मेरे पास आती हो, या फिर आपके रेफरेंसेस में किसी को चाहिए, आप कोई घर बना रहा है या कोई शॉप है या फिर एनीवेयर वेयर यू थिंक अ पेंटिंग इज रिक्वायर्ड, आप इमीडिएटली उनको बोलती हो कि भाई अरे आई नो अ पर्सन हु विल डू अ बेटर जॉब फॉर यू. तो इट्स ओनली थ्रू रेफरल्स एंड कॉन्टैक्ट्स. इट्स बेसिकली अ कॉन्टैक्ट वाला thing. So word of mouth is what keeps spreading my work around. तभी वैसे ही काम आते रहते हैं एंड वैसे ही चलते रहते हैं. बहुत सारी मैंने जो अंदर भी पेंटिंग्स देखी उसमें बहुत सारे आपके जो नॉर्थ का कल्चर ज्यादा आपने यूज किया है. हाँ, तो मैं नॉर्थ में जैसे पिछवाई बहुत है, पटचित्रा है और बहुत सारे अपने हैं जैसे गोंद वर्क है. तो वहाँ नॉर्थ का ये सब है जो कहानियों के साथ बोल पाते हैं. और यहाँ पर तो सबसे बड़ा टैंजोर है. साउथ इज वेरी फेमस बिकॉज तमिलनाडु से ये टैंजोर स्टार्ट हुआ था. एंड दिस आई थिंक टैंजोर एक ऐसी चीज है जो एवरीबडी वुड लाइक टू हैव. इसमें कोई है तस्वीर? ये टैंजोर की है. अच्छा, ये टैंजोर. एंड टैंजोर की एक स्पेशलिटी जो मैंने अपनाई है टू कीप आवर हेरिटेज, सभी लोग नहीं चाहते हैं कि उनके पास भगवानों की ही तस्वीरें हों, बिकॉज जनरली टैंजोर इज रिलेटेड विथ भगवानों को डिपिक्ट करते हैं उसमें. तो मैंने जो लेकिन ये तो किसी महारानी की लग रही है. एग्जैक्टली. सो व्हाट आई डू इज आई हैव very specifically thought that I should cater to every person. This shouldn't be only for Hindus या for anyone anywhere outside India. I want our culture to spread. तो मैंने क्या किया है कि यहाँ पर अपने इंडिया में जो भी फोर्ट्स है, पैलेसेस है, इन सबको मैं आपकी तस्वीर के साथ बना पाती हूँ. अच्छा. So I have customized, I do customization of tanjores for real time architectures. So आप कोई भी आप आर्किटेक्चर की आज मेरे पास लेके आओ, जैसे कोई भी पैलेस ले लो या कोई भी फोर्ट ले लो, that is my forte today. So tell me something about that picture. See, this is आमेर पैलेस का, आमेर फोर्ट पैलेस है ये. तो ये वो पैलेस में ऐश्वर्या राय का पूरा उनको गहना, ऐश्वर्या राय, एग्जैक्टली, तो उनको वो गहना पहना के, दिस इज जोधा अकबर की मूवी में उनका जो गहना वगैरह था. सो दैट ऑल आई हैव डन. सो दिस
काइंड ऑफ पेंटिंग्स आई डू फॉर एनीबडी एंड एवरीबडी हु कम। जैसे बहुत सारे जोड़े जो मेरी भी बना सकती हूँ। बिल्कुल बना सकती हूँ आप ऐसी दिखूंगी मैं। हाँ जी बिल्कुल, बहुत प्यारी दिखोगी। सो आपको जैसे स्टाइल में चाहिए वैसे वाली पेंटिंग, और जैसे आप ना भी हो वहां पे, आप मुझसे कह सकती हो कि मुझे आज मैसूर पैलेस की चाहिए, तो मैसूर पैलेस बैकग्राउंड में लेके वहां पे आपको वहां पे रखे मैं आपकी तस्वीर, या फिर आप अपने पार्टनर के साथ में। जनरली होता क्या है, आजकल जो ट्रेंड हो गया है वो है शादी की सेटिंग्स। वो शादी की सेटिंग्स के साथ में जोड़ा लड़का लड़की वो ठहर के उनकी पेंटिंग्स बनवाते हैं। सो दैट इज नॉट समथिंग विच आप निकाल के रखोगे। हाँ. एक तो टैंजर चाहे आप 100 नहीं 200 साल रखो, खराब नहीं होती है जब तक आप उसको संभाल के रखते हो। एंड दूसरा इसके अंदर बिकॉज प्योर गोल्ड यूज होता है, इसमें प्योर गोल्ड यूज हुआ है। या दिस इज प्योर 24 कैरेट गोल्ड यूज्ड इन दिस। फिर इस पेंटिंग की प्राइस कितनी होगी? That depends upon the size. इसकी कितनी होगी? अभी तो हमारे सामने यही है, तो हम इसकी जानना चाहते हैं। This will come somewhere about 80,000 से 1 लाख के बीच में आती है आपको। Okay. So any painting जो आपको चाहिए, जैसे आप छोटी साइज में करवाती हो तो उतनी डिटेलिंग नहीं आती है छोटी में, जितने माने अगर अपनी तस्वीर बनवाना हो तो वैसे अभी जैसे वो छोटे पिक्चर्स देखेंगी आप एंड ऑल दिस, ये भी जो सामने दिख रही है भी तंजोर, ये वाली हाँ राधा कृष्ण की भी तंजोर है, स्वामी जी की भी तंजोर है। अच्छा, वो विष्णु भगवान जी की जो दिख रही है, हाँ वो वाली भी तंजोर है। तो जैसे वो छोटे छोटे हैं गिफ्टिंग पर्पस वगैरह के लिए जो बनती है, तो वो आपने को 1,500 से डिपेंडिंग अपॉन कि भाई कितना अपने कस्टमर का बजट है उस हिसाब से भी गोल्ड यूज हुआ है। हाँ जी, वो सभी में गोल्ड है यूज। ओके। तो टैंजोर इज स्पेसिफिकली बिकॉज जो कितने कैरेट का गोल्ड आप यूज करते हो? ये 24 कैरेट का गोल्ड, इसके अंदर फॉइल आता है। 24 कैरेट गोल्ड का फॉइल आता है। तो इसके पहले जो प्रिपरेशन करनी होती है वो सभी करके उसके ऊपर ये फॉइल चढ़ाते हैं। सो एज इन यू कैन से गोल्ड प्लेटेड। ओके। सो टैंजोर इज कम्प्लीटली अबाउट दैट। तो आज ये पेंटिंग्स में टैंजोर को करने में सिर्फ आप ही गोल्ड का यूज कर रहे हो या फिर ये पेंटिंग नहीं, जो भी जनरली ओरिजिनल टैंजोर जो बनाएगा वो 24 कैरेट गोल्ड ही यूज करेगा, या फिर थोड़ा करे तो 22 कैरेट गोल्ड। इसके अलावा अगर वो गोल्ड नहीं यूज कर रहा है तो दे आर ऑल फेक पेंटिंग्स विच आर लुक अलाइक्स ऑफ टैंजोर बट दे आर नॉट टैंजोर्स, वैसे हो जाते हैं। What about the demand of this painting? Very high in demand. Very high in demand. People understand about this. Yes. Or only South or other states also? No, मेरी आज टैंजोर पेंटिंग्स इंडिया में नहीं बाहर भी पहुंच जाती है। I give to US market, I give to UK market. They all are Indian who buy this? Buy these, yes. They go. I have people who buy paintings from me यहाँ पे and they resell it there. So I don't know which client it is, but I suppose it must be more of Indians. Yes, because they know about they this. know what these paintings are. Yes. तो होता ये है कि because of its rich value. Yes. एक तो प्राइस वाइज भी, और दूसरा ये पेंटिंग्स की वजह आप से यूज कर रहे हो ना इस तरह का, जैसे कि बनारस के बारे में बोलते हैं, बनारसी साड़ी को बोलते हैं। Exactly. हमारी मम्मी लोग कहती हैं कि पहले बनारसी साड़ी में गोल्ड यूज होता था। करेक्ट। अभी तो शायद उतना नहीं होता है, सब फेक जरिया आ गई है। राइट। तो वो डिपेंड करता है ना कि आप उसमें कितना क्या लगाते हो, वही वैल्यू आपको क्रिएट करनी है। So I am among those जो fake gold use नहीं करती. All my paintings are authenticated by me. I will give you a certificate also for them. तो 24 carat gold is 24 carat gold in this. तो वैसे टैंजोर का हो जाता है। And because हर एक अपने थॉट्स के साथ आता है, नॉट एवरीबडी वांट्स भगवान वगैरह। सो दीज काइंड ऑफ पेंटिंग्स, ये एक तो उनको जैसे चाहिए वैसे मिल जाती है, एंड दूसरा अपने कल्चर को यहाँ ही नहीं बाहर भी सभी जने रखना पसंद करते हैं। एंड बिकॉज ऑफ इट्स हाई वैल्यू पसंद करते हैं, बहुत पसंद करते हैं। सो दे ऑल वांट दैट वी आर कनेक्टेड विथ इंडिया। दैट इज ट्रू। ये है। और अभी सबसे ज्यादा पिछवाई बहुत हो गई है। तो पिछवाई पेंटिंग पिछवाई नाथद्वारा से है। इसकी क्या खासियत है? उसकी खासियत ये है कि ये सबसे ज्यादा कृष्ण जी की स्टोरीज बखान करता है। ये है क्या? ये पिछवाई में आएगा क्या? नहीं, पिछवाई ये नहीं रहेगी, आपको बताऊंगी मैं। ये पिछवाई है। ओके, आप ऐसे देखो। हाँ, ये नाथद्वारा जी के कृष्ण जी है।
पिछवाई पेंटिंग ये पिछवाई पेंटिंग्स हो जाती है। Okay. तो आप जैसे ही गाय, लोटस वगैरह सब देखते हो तो इट इज पिछवाई। अच्छा। तो पिछवाई में ये जैसे गाय है, इसके अंदर सारी कहानी आप कृष्ण लीला डाल सकते हो। तो बहुत फेमस है ये पेंटिंग्स। तो पिछवाई के अंदर कृष्ण जी की लीलाएं, कृष्ण जी की स्टोरीज वगैरह बहुत ज्यादा तो मैम depicted इस पे रहती है। क्या आप या मटेरियल क्या इसमें क्या use ये किया? आज पहले तो मतलब ऑथेंटिक वाली अगर अपनी बनवानी है तो दिस इज डन ऑन कॉटन क्लॉथ, या फिर हो जाता है कि आप सिल्क क्लॉथ पे करो। अच्छा। इसकी बारीकी बहुत रहती है, आपको बहुत बारीकी से इसका काम चलना पड़ता है। तो बट आजकल बिकॉज एवरीबडी कांट एफोर्ड दैट, दीज आर द थोड़ा कॉस्टली है? नहीं, ये थोड़े इनएक्सपेंसिव वाले है जो हम एक्रिलिक पेंट्स यूज करके कैनवस पे बना देते हैं। ओके, अगर एक इसकी प्राइस कितनी हो सकती है आपको ये दोनों मिला के आपको 6000 में आ जाएंगे दैट वे। तो इसमें पिछवाई आपको 5-6 हजार से लेके 1.5-2 लाख 2.5 लाख तक भी पेंटिंग्स चले जाती हैं। अच्छा। उनके काम पे और किस पे आप कर रहे हो, जितनी डिटेलिंग आप करेंगे। जैसे राजस्थानी पेंटिंग्स भी है अपनी, जयपुर की जितनी भी पेंटिंग्स है, इसमें बारीकी बहुत रहती है। अच्छा, राजस्थान की जो पेंटिंग है उसका नाम क्या है? दे आर कॉल्ड राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग्स। तो ये राजस्थानी बेसिकली मिनिएचर पेंटिंग्स, इसमें बहुत बड़े बड़े नहीं बट छोटी पेंटिंग्स बनती है, लेकिन डिटेलिंग बहुत ज्यादा हो जाती है। सो दे आर वेरी फेमस। राजस्थानी पेंटिंग्स भी अपने पूरे यू कैन फाइंड इट एवरीवेयर एंड एनीवेयर। यस, दैट इज इट। देयर कल्चर इज आल्सो वेरी रिच। वेरी रिच। तो पूरे राजा महाराजाओं का, जैसे ही जयपुर या उदयपुर की बात करेंगे तो द ओनली थिंग वी टॉक अबाउट रजवाड़े की बात ही करेंगे। तो आप वहाँ के पैलेसेस में भी जाओगे तो आपको बहुत सारी पेंटिंग्स दिखाई देगी। वहाँ के महाराणा प्रताप पे कुछ आपने किया है? ना, अभी तक तो नहीं, बट डेफिनेटली यस कर सकते हैं। He's very famous. He's very famous, and he fought for India. Oh yes. आपने बहुत सारे आई थिंक रजवाड़ों की बात करें तो बहुत सारे हैं जो बहुत सारे they have given too much to our culture also. Now think today you see movies or stories, they are promoting their heroes. Right. They like Maharana Prithviraj Chauhan है, Maharaj, Shivaji Maharaj, exactly. and what about the South? From all over India. So I think if you using painting, then it is also a good thing. Yes, बहुत हो जाता है। See, हर एक की अपनी छोटी छोटी ख्वाहिश होती है कि यू नो दिस इज व्हाट आई वांट टू कंट्रीब्यूट। आई थिंक एज एन आर्टिस्ट मेरा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन अपनी तरफ से जो छोटी कोशिश है वो है कि अपना इतना ज्यादा रिच कल्चर है, अपना इतनी अच्छी हेरिटेज है, ये कहीं ना कहीं लुप्त होते जा रहा है, जो नहीं होने चाहिए। अपने पास इतने ज्यादा आर्टिजन्स है जो यू नो दे रियली पुट इन सोल व्हेन दे डू दिस काइंड ऑफ वर्क्स। तो ये जब आप हर शैली यहाँ की जब आप करती हो पेंटिंग के अंदर, तो हर एक क्या कहते हैं को कनेक्ट करता है। हाँ, हर एक स्टेट के कल्चर को प्रमोट करने की कोशिश करती हूँ। तो इसीलिए आई थिंक मैंने जैसे तेलंगाना का चेरियाल है, या फिर यहाँ तमिलनाडु का आप ले लो टैंजोर है, तो बहुत सारी जगहों से every now and then I keep trying to see कि वहाँ पे कौन सी पेंटिंग्स बहुत अच्छी है। जैसे अभी culture is very rich. I think nature has given you gift that you promote right. its culture. Yes, probably that way. अभी मिथिला का सबसे पहली पेंटिंग मीनिंग जो बहुत सालों या राम जी के टाइम से इज अपनी मिथिला पेंटिंग्स जो मधुबनी के नाम से भी फेमस है। राइट। तो ये पेंटिंग्स तो राम जी के टाइम से शुरू हुई है। तो आप सोचिए ये वाली पेंटिंग्स का हम प्रमोट नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। तो ऐसे ही इसके नाम से बिकती भी हैं मधुबनी। राइट, मधुबनी के नाम से साड़ी हो गई। एग्जैक्टली, इतने सारे हो गए हैं। तो आप कहीं भी करो, आप जैसे आज कोई मधुबनी की साड़ी देखते हो तो इमीडिएटली यू कैन रिलेट, अरे भाई ये तो मिथिला से है। आप जैसे ही कोई पेंटिंग देखती हो तो यू कैन से ओके दिस इज रिलेटेड विद दिस वन। तो ऐसे हर छोटी छोटी कोशिश है कि हर जगह की अपनी टेक्निक यू नो सब तक पहुंचा पाऊं। ये जितनी भी कल्चर, जितनी भी हमारी चीजें लाइक साड़ी हो गई, पेंटिंग, तो ये सारी चीजें हमारी कल्चर को कनेक्ट करती है। नहीं तो यहाँ की कांजीवरम साड़ी, करेक्ट, आप देखिए, वो तो आप देखिए एनीवेयर वर्ल्ड वाइड फेमस है आज अपनी कांची साड़ीज। करेक्ट। तो ऐसे ही
आप जिस भी एरिया में हो वहाँ के उससे आप कनेक्ट करते ही हो उस चीजों को। राइट सभी जगह देखिए आप पेंटिंग्स में भी आपको देखिए डिफरेंट डिफरेंट वहां का पहनाव उभर आ जाता है। आप टैंजोर करती हो तो वहां का पहनाव ही एकदम अलग है, उनके फेशियल फीचर्स वगैरह वैसे हो जाते हैं। अभी उड़ीसा की पेंटिंग देखिए आप वहां पे फर्स्ट वाली अच्छा एकदम, तो आपको दिख जाएगा वहां का पहनने का स्टाइल, ओढ़ने का स्टाइल एकदम अलग होता है। तो वो तो मुझे उनके तरह जगन्नाथ जी के जैसा भी वो फीलिंग एग्जैक्टली तो वो वाली आ जाती है आपको। मतलब हर अपने पास इतना ज्यादा कलरफुलनेस है, इतना ज्यादा कल्चर है जो आई थिंक प्रमोट होना भी चाहिए। किसी को यहाँ पे भूलने देना नहीं है मुझे बस। हाँ। तो अभी आप किसी को सिखाते भी हो, क्योंकि आपके बाद कौन करेगा ऐसा कुछ नहीं। एक फेज था जब मैं थोड़ा सिखा रही थी, बट राइट नाउ आई थिंक आई वांट टू कंसंट्रेट मोर ऑन डूइंग एट द मोमेंट। जितना कर सकती हूँ करूंगी, जब लगेगा कि नहीं अब ये सिखा लूं। Okay, then you don't think that if you want to save our culture and our paintings, then you have to open an institute for that? Yes, that is my plan. I definitely want to open up where, and under one roof, everybody can learn what kind of painting they are interested in. हर कलाकार में एक, छुपा हुआ होता है कि मुझे ऐसी वाली करनी है। जैसे आज मॉडर्न जमाने के नाम पे जो हम एब्स्ट्रैक्ट्स बनाते हैं और व्हाटएवर इट इज, नहीं, with by institute now we are going to teach professionally, right. And people will join yes. us. Like education को ले लीजिए, if you are learning something in your home, then nobody knows that you don't have any recognition towards it. Yeah, same, exactly. So probably that is what I will want to do it in the future. I definitely want under one roof every art to be taught to every student that comes. Okay, what about the workshop are you doing? Workshops I do. I keep holding workshops for promoting all this. So especially summer time when people are free, parents are free. तो वर्कशॉप में तो आपको पूरे मतलब जो भी इससे जुड़े होंगे लोग, उनसे मुलाकात होती होगी, मिलते होंगे आप लोग? बहुत सारे आते हैं, not many that I know of, जो आर्टिस्ट परफॉर्म करते हैं या फिर you have a workshop kind of a thing for artists. But yes, if you want to learn one particular thing, आप उसके आर्ट वहां जाकर आप सीखने की कोशिश कर सकते हो। टुडे यू विल फाइंड मेनी पीपल लर्निंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ आर्ट्स, बट दैट इज रिलेटेड विथ व्हाट दे वांट टू लर्न। सो अंडर वन रूफ दे डू नॉट हैव दिस कि आज मैंने इतनी जगहों की पेंटिंग देखी है तो मुझे ये सब सीखनी है। पेंटिंग एक ऐसी चीज है जैसे आप करते जाओ तो और आप डेवलप करने की कोशिश करोगे। देयर इज नेवर एन एंड फॉर लर्निंग, देयर इज नेवर एन एंड फॉर इट। तो आप जैसे जैसे इसको करोगे वैसे आपको लगेगा कि मैं और सीख लूं, मैं और बना लूं, मैं और कर लूं। तो आप जैसे जैसे नई टेक्निक सीखोगे, और इफ यू आर इन वन इंस्टीट्यूट जहां बच्चे आ रहे हैं आपके पास, या फिर कोई भी उम्र के हो, देयर इज नेवर एन एज यहाँ पे सीखने के लिए भी। तो जैसे जैसे ये सीखेंगे उनको लगेगा कि अरे भाई ये भी मुझे बहुत अच्छी लग रही है। तो एक्चुअली क्या है कि पेंटिंग लोग ज्यादातर शौक के लिए करते हैं। करेक्ट, ठीक है। तो हमने बहुत सुना था कि लाइक सलमान खान इज पेंटिंग, लाइक बिग पीपल आर पेंटिंग, तो दे हैव फुल मनी, सो आर दे डूइंग फॉर देयर पैशन। हाँ, दे डोंट नो दैट दे कैन क्रिएट मनी ऑल्सो, बट ऐसा होता है अगर तो मेनी पीपल विल ज्वाइन। राइट, अगर होता है तो डेफिनेटली समबडी विल आप जॉइन। बताओ, आप तो बोल रहे हो 80-80 हजार की बिक्री है, तो कैसे होता है? हाँ, नहीं, ये होता ये है कि देखिए आज अपने पास वी कैन से वी हैव अ वेरी बिग मार्केट। ये नहीं है कि मार्केट नहीं है। आज आप छोटी वाली ऑफिस भी बनाओगे तो उसमें पेंटिंग लगाओगे, आपका छोटा सा घर हो तो उसी में भी पेंटिंग लगाओगे, बट इट डिपेंड्स अपॉन योर बजट कि आप क्या लगाना चाहोगे। या फिर अब जैसे कंपनीज है, बहुत सारी कंपनीज, एवरी कंपनी लीजिए, आज हॉस्पिटल्स लीजिए, सभी को अपनी पेंटिंग्स चाहिए होगी। तो अपने बजट के हिसाब से उनको कौन से थीम पे पेंटिंग चाहिए, ये लोग जैसे जब बताते हैं तो हम उस पे काम करके देते हैं। अच्छा। आप जैसे ये नहीं है कि आपको सारी पेंटिंग्स आए, आप एक में भी माहिर हो सकती हो, तो आप उसी को, सी थिंग इज कि आपको रुकना नहीं है। आप अगर कोई चीज को परस्यू करते हैं तो पैशन के साथ कीजिए,
definitely you will find your people to take it. How many days or month you take for one painting like this painting? This will Yeah. take almost about 25 days to 1 month. Only 25 days? Yes. And what about that painting? That will take in about 3-4 hours. Great. Okay, ये कितने की होगी ये पेंटिंग फिर ये आपकी? आपको 5000 में आ जाएगी. ये क्या है इसका? ये म्यूरल पेंटिंग है. इसके अंदर जस्ट विद द नेचर ये थोड़ा उभार के बताने की कोशिश की गई है. इसके अंदर आप ये जो पीकॉक देख रही हैं, दैट इज आल्सो डन इन 3D म्यूरल. आप जो ऊपर देख रही हैं हॉर्सेस, ये भी कम्प्लीटली 3D म्यूरल में है. इसका सेपरेट क्ले आता है. अच्छा. तो इसको एक एक फीचर को उभार के लाना होता है इसमें. सबसे कॉमन जैसे ही आप पेंटिंग का नाम लेते हो तो सबको बेसिकली जो आती है वो है ऑयल पेंटिंग या फिर एक्रिलिक पेंटिंग्स वगैरह. हाँ, तो पीपल डोंट नो इतने टाइप की पेंटिंग्स होती है. सो आज का मार्केट हर पेंटिंग के लिए है, डिपेंडिंग अपॉन आपको क्या चाहिए. बस आपको अगर ये क्लैरिटी आ जाती है. देखिए, जब आप एग्जीबिशंस में जाती हो तो आपको जो पसंद आता है आप ले लेती हैं. बट देयर आर नाउ मेनी पीपल हु आर वांटिंग समथिंग. जैसे एक थीम के साथ में हम ये पेंटिंग सारी एक थीम के साथ चाहिए, या फिर दिस इज व्हाट वी वांट. आपको कोई हेल्प के लिए भी चाहिए होता है या फिर आप अकेले ही कुछ करते हैं? मैं जनरली वही लेती हूँ जो मैं कर पाती हूँ. बिकॉज हेल्प जब लेते हैं तो पेंटिंग के अंदर इट बिकम्स मोर ऑफ कमर्शलाइजेशन. जब आपने स्टार्ट किया था, व्हेन यू स्टार्टेड, तो कॉन्फिडेंस कैसे आया कि अरे आई एम डूइंग गुड? मतलब किसी को तो दिखाया होगा. एग्जैक्टली. होता ये था कि जब पहले पेंटिंग्स बनाती थी तो मोर इन द फ्रेंड्स एंड फैमिली के अंदर गिफ्टिंग के पर्पस में चले जाते थे. अच्छा. तो ये लोगों ने शुरू किया कि आप क्यों अपना प्रोफेशन नहीं बनाती हो? व्हाई डोंट यू डू मोर एज एन सेलिंग? इतने एग्जीबिशंस होते रहते हैं तो तुम अपनी पेंटिंग वहां क्यों नहीं लगाती हो? दैट वे. तो हुआ ये कि थोड़े थोड़े ऑर्डर्स लेने शुरू किए मैंने. एंड देन आई रियलाइज कि यस, देयर इज हाई पोटेंशियल वेयर पीपल रियली लाइक इट. And then the journey actually began, जहाँ मैंने एक्सप्लोर करना शुरू किया. कितने का ऑर्डर मिला था आपको? पहली वाली पेंटिंग मैंने 1000 रुपीज में बेची है. It's great thing. It's great thing. That was a pretty big one जो मैंने किया था, and it was an oil painting because that was the basic. जब मैंने शुरू किया था तो it was more, acrylics भी ज्यादा नहीं थी. Okay. So it was more like पेंटिंग यानी ऑयल पेंटिंग या फिर इट इज वाटर पेंट्स. ये दो ही थे जो मीडियम्स बहुत ज्यादा पॉपुलर थे. आज इतने मीडियम्स हो गए हैं. हम लोग सुनते हैं ऑयल पेंटिंग. ऑयल पेंटिंग करते कैसे हैं? क्या ऑयल पे करते हैं? कैसे करते हैं? नहीं, ऑयल पेंटिंग इन द सेंस मीडियम एक ऑयल पेंट्स का होता है. ये पेंट्स ऑयल बेस्ड रहते हैं. अच्छा. तो इसीलिए इनको ऑयल पेंट बोलते हैं. Okay. ऑयल पेंट का एक एडवांटेज, जैसे टैंजोर पेंटिंग का मैंने बताया, ये पेंटिंग्स खराब नहीं होती. ऑयल पेंटिंग भी कभी खराब नहीं होती. अब वो आप पेंटिंग देखिए, दैट इज 30 years old पेंटिंग. ऑयल पेंटिंग. ऑयल पेंटिंग. अच्छा. ये रवि वर्मा जी के वन ऑफ द फेमस, ही इज अ वेरी फेमस. यस. तो उनकी रीमेक की थी मैंने. Okay. दैट वाज द फर्स्ट चैलेंज एज एन ऑयल पेंटर दैट आई टुक. Okay. सो जब वो बन गई थी, दैट इज अ पेंटिंग व्हिच आई डोंट सेल बिकॉज इट्स वेरी क्लोज टू माय हार्ट. तो ये पेंटिंग एक तो फेड नहीं होती, एंड दिस इज ऑल्सो लाइक टैंजोर एवरलास्टिंग. तो आप अगर इसको संभाल के रखती हो तो आप अपने नेक्स्ट जनरेशन को, वो अपने जनरेशन को पास कर सकती हैं. हम लोग पार्लियामेंट में भी सुनते हैं कि ये ऑयल पेंटिंग की बनी हुई है, तो ट्रू, उसकी उतनी क्या बोलते हैं, उतने दिनों तक सस्टेन करने की कैपेबिलिटी है. यस, इसीलिए करते हैं. एंड इसको बनाने में भी टाइम लगती है. जैसे ये पेंटिंग आपको अगर एक पेंटिंग भी बनानी है, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, बट इसको कम से कम आपको 20-25 डेज देना पड़ता है अगर आप फुल फ्लेज में, मतलब पूरा उभार लाकर कर रही हैं. इसका रीजन ये है कि ये पेंटिंग के लेयर्स को सूखना पड़ता है. अच्छा. जैसे आज मैंने बेस कोट दे दिया तो ये सूखेगा, तब मैं उसके ऊपर ओरिजिनल कोट दे पाऊंगी. तो ऐसे लेयर्स में बनती है. तो फाइनली जब तक मैं फीचर्स पे पहुंचूंगी, जब करूंगी, तब तक हर एक, जैसे आप अगर सबसे डार्क कलर देती हो तो ये सोच के मुझे डार्क कलर देना है कि फाइनल कलर कैसे आएगा, बिकॉज ये कलर्स अपने आप में उभरते जाते हैं. Okay. आप इसके ऊपर सेकेंड कोट लगा दियो तो पहले वाला कलर भी इसमें मिलता है. तो ऐसे करके आते हैं. तो ऑयल पेंटिंग टेक्स टाइम. इसी का सबसे फास्ट ड्राइंग जो अब आ गया है, दैट इज एक्रिलिक.
तो एक्रिलिक पेंट्स हम घंटों में कर सकते हैं या फिर 4-5 दिन में। अब बड़ी वाली हो तो शायद 4-5 दिन, हफ्ता, बट हो जाती है, बिकॉज इसके लिए ड्राई करने का वेट नहीं करना पड़ता है। आप कैनवस के एक साइड कर रही हो, दूसरी तरफ आती हो, जब तक वो सूख जाता है। बट दैट इज नॉट द केस इन ऑयल। इसीलिए ऑयल पेंटिंग एक्सपेंसिव भी होती है और साथ में टाइम लेती है। ओके, आप बोल रहे थे कि आपने खुद से सीखा है। हाँ जी, गॉड ने आपको ये गिफ्ट दिया है, राइट। पर अभी कोई सीखना चाहता है, लाइक Right. बच्चे सीखने चाहिए, कोई भी सीखना चाहता है, तो उसके लिए क्या है कुछ? देखिए, मैं जब सिखाती हूँ तो द ओनली फर्स्ट थिंग दैट आई विल सी, आप में वो पैशन चाहिए। पैशन इज इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट। आप खाली जस्ट बिकॉज मुझे सीखना है, बिकॉज somebody this has is a told me, creative work, this is a creative creative work, हाँ। अगर आप थोड़ा भी इमेजिनेशन, जैसे मैं आपको कहूँ शशि जी आप एक चिड़िया बना लीजिए, आप चाहे कुछ प्रोफेशनल ना हो, यू विल नॉट कम, बट इफ यू आर दैट आर्टिस्ट वाला थिंग, यू विल ड्रॉ द बर्ड। चाहे पैर ऊपर करे उसके, या यू नो whichever pose you want to, but you will be able to draw the bird, क्योंकि आप उसको विजुअलाइज कर पा रही हैं, आप चिड़िया को वहां विजुअलाइज कर पा रही हैं, आप उसको दे पा रही हैं एक आकार। बट आप एज ए स्टूडेंट आ जाएंगे एंड टेल कि मुझे सीखना है, तो फिर आपको बेसिक से जाना पड़ेगा। जैसे आप पहले स्केचिंग से शुरू करो, मीनिंग लाइन स्ट्रोक्स वगैरह सीखो, फिर जैसे जैसे आप ऊपर स्टेप्स जाते जाएंगी तब आप पहुंचेंगी पेंटिंग करने की तरफ। वरना तो एब्स्ट्रैक्ट तो है ही है आजकल, चाहे आप कलर्स के साथ खेलती हो तो एब्स्ट्रैक्ट्स बना लो आराम से। ओके मैम, आप सेल कितने का कर लेती हैं, लाइक महीने में, साल में कितने का हो जाता है सेल? आई थिंक आई डोंट वांट टू टेल दैट, बट यस, लाइक थोड़ा सा, क्योंकि एक वुमेन जब विदाउट अर्निंग मनी वी कांट इम्पोर्ट। Yes. So it is a challenge. It is a challenge because मेरा तो हो गया था कि ये हॉबी है, तो I had to come beyond people to recognize it as a hobby. So people had to take me seriously पहले. So हो गया था. I think today my paintings sell even for 1 to 2 lakhs से लेके 10 to 15 lakhs तक, anything depending upon the work that I do. Okay. तो जैसे आपको ये बताया, ये तो 5,000 की ही पेंटिंग है, वैसे 2,000 की भी है। तो जितना काम रहेगा, जितना उस पे रहेगा, बस मैं वही बताना चाहती थी कि लोग पेंटिंग को पैशन समझते हैं, लेकिन इससे पैसे भी कमाया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, इफ यू वांट टू परस्यू इट एज अ कैरियर, बहुत आज मार्केट बहुत वास्ट है इसके लिए, आप डटे रहो। और इसके लिए सबसे बड़ी अच्छी बात है कि देखिए मैम घर में ही अपना कर ले रही हैं। हाँ जी, घर में ही कर ले रही हैं, जो कि एक बहुत बड़ी महिलाओं के लिए एक मतलब कहते हैं ना कि क्रिएटिव वर्क करना है तो बाहर जाना पड़ेगा, लेकिन आपको रीजंस ढूंढने की जरूरत नहीं है कि भाई मुझे घर से बाहर नहीं जाने दे रहे हैं तो मैं नहीं कर पाऊँ। अरे भाई, आपकी जो भी टैलेंट हो आप उसको परस्यू करो। आज आई थिंक हिंदुस्तान नहीं, सारी दुनिया में आप जिसमें भी माहिर हो, आप उसके अंदर अपना नाम बना ही पाते हो। बट ओनली थिंग इज आप में थोड़ा पेशेंस चाहिए, परसिस्टेंस रहनी है, तो डेफिनेटली यू विल विन इट। आपको नहीं भी आता है तो देखिए, विद इन आप जैसे जैसे उसको करोगी, आपको और अपने आप को उभार पाओगी। ये तो है नहीं कि बॉर्न मुझे हाथ में ब्रश दे दिया एंड मैंने एक पिकासो बना दिया। नेचर रूल मैम, एग्जैक्टली, डूइंग यू विल गेट मोर, इफ यू विल नॉट डू यू विल नॉट गेट। सो शायद मैंने जो पहली पेंटिंग बनाई थी उसमें वो डिटेलिंग भी ना हो, लेकिन आज जब बनाती हूँ तो सारी डिटेलिंग कर पाती हूँ और आपको बता भी पाऊंगी, मतलब जब देखती हूँ कि बड़े इसमें ये नहीं है, ये और कर सकती हो आप। सो आई थिंक इट्स प्रैक्टिस विच विल मेक यू परफेक्ट, और बनने की कोशिश करें। नहीं, मैं तो सभी विमेन पावर को यही बताऊंगी कि यू कैन बिकम अ बिग पावर, but do it with persistence, do it with lot of passion, and you will reach your goal. Don't think that you cannot, win hearts. You will definitely win hearts. You will get the confidence. You will be able to do anything. Don't back out. Just pursue it.